Okay, enough time for joining. So, am I audible, everyone? Chalo, very good. Those who are having problem, quit and join. Yes, Abhiksha. Chalo. So today we have learned. अभी दो लेक्चर और लगेंगे आज का और नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो फॉर टू फिनिश दिस एनसीआर. अभी तक हमने ऑलरेडी एफओएम सीखा है. वी हैव लर्नड एफओएम, वी हैव लर्नड एफओए, वी हैव लर्नड परम्यूटेशन, वी हैव लर्नड कॉम्बिनेशंस. फाइन ना. So now the platform is set to learn the next few things. Fine. Let's see. Have we done this problem? Have we done this problem? There are 4 boys and 4 girls. We have to make a team of 3 persons in which at least one girl should be there. Okay, fine. So I'll discuss with this. Fine. आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं करना है. We have मैं ये क्वेश्चन करूंगा. मैं ये क्वेश्चन I'll do this question with 3 methods. You try to understand all those 3 methods, fine na? And tell me which method is correct and which method is wrong. If some with excuse me, if some method is wrong, you need to give me the explanation also that this method is wrong because of this reason. So just sit guys, relax, let me do this sum. आप लोगों को नहीं करना है, आप सिर्फ समझना है. ठीक है, just focus and try to understand. See, method 1, I'm calling it a method 1. Fine. एक गर्ल चाहिए ना, so let's try to make cases. एक गर्ल हो सकता है, टोटल 3% चाहिए, ध्यान रखना. 1 girl, 2 boys, 2 girl, 1 boy and 3 girl. These 3 will be the cases. This is case 1, this is case 2, this is case 3. Fine. I need to select 1 girl out of 4. I can do it in 4C1 ways into I need to select 2 boys out of 4 boys, 4C2. This is case 1. Case 2, I need to select 2 girls out of 4 girls. It is 4C2 into I need to select 1 boy out of 4 boy. It is 4C1. I need to select 3 girls out of 4 girls, 4C3. ठीक है, अब इनको क्या करना है, ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? Add, correct na? Because it is the event of cases. So you add all these. You will add all these. This is the method 1. Fine. Any doubt in method 1? किसी बच्चे को method 1 में डाउट हो तो पूछो. Method 1 में डाउट हो तो ही पूछो. यश उदिश. उदिश. Sir, no sir, I was having doubt from the starting, but you didn't listen to my doubt only.
So I am taking this problem. Try to इस method में किसी को doubt हो तो बोलो. Sir, can you please repeat as I was not able to hear you. What do you want me to repeat? Sir, this method 1. Method 1. Okay. Swapnil. Sir, so why have we added them? Because it is the event of cases. In the event of cases we add. I have explained that n number of time. It was explained in the lecture 1, lecture 2, lecture 3, throughout the lectures. Okay, sir. That's So the if fundamental we principle, cancel one of case, addition. so it will be, yes, sir. So if we cancel one case, so it will be possible. How? Like, हाँ, लो ये वाला केस कैंसिल कर दो. कौन सा केस कैंसिल करना है? ये वाला. Can you make the team? yeah. हाँ. So it's a case of case. In the case of case we add. Sir, and why have we taken combination here? Like, instead of taking permutations, why have we done all the? Because the question is asking composition of the team. Question is not asking whether you select a boy or a girl. Question is only interested team member कौन कौन है. Question इस बात में interested नहीं है कि टीम में पहले कौन आ रहा है बाद में कौन जा रहा है. Okay. Yes. सर आपने 4 क्यों लिखा? N4 क्यों लिखा? कहाँ पे? सर ये N. हाँ क्यों बेटा? कितने पर 4 बॉयज हैं 4 गर्ल्स हैं तो 4 में से सिलेक्ट करोगे ना. सर टोटल 8 है ना. तो बेटा केस देखो ना. मेरे को एक लड़की सिलेक्ट करनी है. अब लड़कों में से लड़की सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या? 4 लड़के उनमें से एक लड़की सिलेक्ट करूंगा क्या मैं? नहीं. तो फिर ठीक है सर. थैंक्स. मेथड 1 में कोई डाउट नहीं है. चलो लेट्स सी द मेथड 2. है ना. सारे मेथड नोट करते जाना. प्लीज नोट ऑल द मेथड्स एंड टेल मी व्हिच मेथड इज करेक्ट एंड व्हिच मेथड इज रॉन्ग एंड व्हाई. मेथड 2. अच्छा देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई आपको एक लड़की चाहिए ही है ना. ग्रुप में एक लड़की चाहिए ही है. तो ऐसा करो ना, पहले एक लड़की रिजर्व कर लो. है ना. इन 4 लड़की में से आउट ऑफ दीज 4 गर्ल बुक रिजर्व 1 गर्ल. सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू इट? 4C1. अभी इस पोजीशन या इस ग्रुप में एक लड़की आ गई. सी इज देयर. अभी रेस्ट 2 पर्सन में कुछ भी चूज करूं ना. रेस्ट 2 पर्सन्स either I can choose both boys, either I can choose both girl, one girl one boy. And now nobody can challenge me. Why? Because I have already selected one girl. I'll always say that I have one girl. You're telling at least one girl. So how many persons are left? 7. So out of 7 I can choose 7C2. 1 person for this, 2 for this. So the answer is 4C1 into 7C2. अभी इस मेथड में कोई डाउट है तो बोलो. Any student having any doubt in this method? This is method 2. Yes, Riddhija. So could you repeat this? Okay. Yes, Ashi. So I didn't understand the second method, as in how do those two spaces? I didn't get the second method. I'll explain again. See, second method says that the question is asking us that in the group there should be at least one girl. Question is explicitly telling us that whatever team you choose, make sure there should be at least one girl in it. So what I'm doing, let us reserve that girl. So this 4C1 is the number of ways of selecting one girl, that is 1 out of 4. So that's why 4C1. We have already covered the combinations part. Fine. Into
Now out of these two places, fine now, for the rest two members can be anyone. They can be both boys, they can be boy or girl, or both girl. The question don't care. Question is only asking there should be at least one girl. So for rest 7% are left. Fine. So out of 7%, I have to choose 2%. So 7C2. So 4C1 into 7C2. Now what is the doubt? Yes, Ira. Ira, Yes, sir. Sir, you in raised it. this, yes, sir. Sir, in this, so 7 choose 2 में आपने two places की जगह 3 भी अच्छा sorry sir clear हो गया sir. This is method number 2. Chalo. Now focus on method number 3. Correct? Yes. Method number 2 में doubt है तो raise your hand. Method number 3. क्या करो? Find. You take all the cases. Yes, complementary. Correct ना? You take all the cases. Total 3 persons की कितनी टीम बन सकती है वो ले लो. Without any restrictions. जिसमें कोई भी restrictions नहीं है. तो कितनी बन जाएंगी? 8C3. 4 boys, 4 girls, 8C3. This is the total number of teams possible. इसमें सारे cases available है. All cases that you can think of is available in 8C3. Fine. अभी इनमें से मैं वो केसेस माइनस कर देता हूं. आउट ऑफ दिस टोटल केसेस आई विल माइनस दोस केसेस. वैसी टीम के केसेस माइनस कर देता हूं जिस टीम में सिर्फ लड़के हैं. करेक्ट ना? I'll subtract out of this 8C3 the cases in which the teams in which there are only boys, because the question says that at least should one girl be there. So at least boys वाली कितने हो जाएंगे? 4C3. So this is method third. अभी method third में किसी को डाउट है तो raise your hand. Yes, प्रथम. सर एक्चुअली मेरे को डाउट था कि मतलब लास्ट मेथड में हम लोग को आंसर 72 आया था ना बेटा आप मेथड. डाउट रिलेवेंट तो इसमें रखो. कैलकुलेशंस पार्ट में नहीं कर रहा अभी, है ना? नहीं मुझे डाउट था कि इसमें आंसर 52 आ रहा है, उसमें आंसर 72 आ रहा है, वो कैसे पॉसिबल? हाँ, तो ऑब्वियसली कोई तो तीनों में से कोई एक गलत होगा, तो वही तो क्वेश्चन है. अच्छा ठीक है. हाँ. Any student having any doubt? चलो अभी आप बताओ मेरे को कि कौन सा मेथड सही है. सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है. Which method is right, which method is wrong, the method which is wrong, why it is wrong, what mistake we made. Method 1 is correct or wrong? कि सर तीनों मेथड करेक्ट हैं. नहीं सर तीनों मेथड रॉन्ग है, 2 मेथड रॉन्ग है, 1 मेथड रॉन्ग है. वेरी गुड. तो many of you are getting the answer कि सर फर्स्ट मेथड और थर्ड मेथड करेक्ट है और सेकंड मेथड रॉन्ग है. तो अब मेरे को बताएगा कि सेकंड मेथड क्यों रॉन्ग है. व्हाई सेकंड मेथड इज रॉन्ग. Who will tell me?
क्या मिस्टेक करी है हमने? यस गर्व। सर इस वाले सेकंड वाले मेथड में हम लोग वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं कि गर्ल कैसे सिलेक्ट हो सकता है। नहीं तो आप सेकंड यदि आप काउंट करोगे तो फर्स्ट का आंसर 52 आता है, सेकंड का भी 52 आता है, सेकंड का कुछ और आता है, थर्ड का 52 आता है। तो आप यदि बोल रहे हो कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो 52 से कम आना चाहिए, 52 से ज्यादा आ रहा है वो तो। क्योंकि लोग जैसे जैसे हम करते हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ते जाते हैं, तो इतने कैसे एग्जांपल पॉसिबिलिटी लेके होते हैं तो बताओ। उससे सर ऐसे लास्ट क्लास में भी हमने ऐसे ही किया था वो वाला क्वेश्चन जो हाँ बोला तो था वो मैंने इसीलिए तो आपको मैंने ये कि क्वेश्चन लिया हुआ है, सो दैट यू इट बिकम्स क्लियर कि आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। एनीवन एल्स? उसमें हमें एक मिनट, एनीवन एल्स? ओके यस बोलो। Sir, in the second method, we just found the number in the 4C1. We just found the numbers of ways of choosing one girl, but Okay. there can be many number of girls possible. नो सो उससे क्यों आंसर ऐसा डिफरेंट आया? क्या प्रॉब्लम हो गई उसमें? केस आपको लॉजिक में कोई प्रॉब्लम बताओ मेरे को। लॉजिक तो साउंड लग रहा है ना परफेक्टली। सेकंड की लॉजिक में किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ कि सर ये लॉजिक गलत है। एनीवन? यस। नहीं सर, प्रॉब्लम नहीं था सर, मुझे सर आई वांट टू गिव द आंसर वाई सेकंड वाला रॉन्ग है क्यों? सर बिकॉज जैसे सर पहले बोला था कि सेकंड वाले में सर आप फर्स्ट में सर फर्स्ट में एक ऑप्शन है सर वन गर्ल एंड सर दूसरे द 7 का सर वहाँ यू कैन रिपीट नहीं सर। यस एनीवन एल्स? यस दर्शन? Sir, in this you did not take 4C0. You only took 4C1, so that's why the answer came wrong. No, 4C. What is the problem in the logic? Why I should take 4C0? What is the meaning of 4C0? 4C0 means number of ways of selecting nothing. So why should I take that case? Okay. Yes, Prisha from Dadar. Sir, just a thought, but when we chose any one girl in the second method, after that we had 3 girls left. So basically we chose any one girl from those 4 girls. But when we took the remaining 7, we are adding those, we are taking those 3 girls again. So it's like choosing 2 times. Okay, so what is the problem in that? In that it's getting counted twice. Okay, The same correct. number of girls. Correct. Prisha is correct. Right na? Yes. So correct beta. So that is the correct answer, है ना guys? Try to understand. अभी देखो क्या प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान से देखना सेकंड मेथड में। What was the second method? कि आपने पहले 4C1 में फर्स्ट लड़की चूज की, करेक्ट? सपोज करो यहाँ पे वो लड़की आई G1। सपोज करो टोटल गर्ल्स कितनी है? G1, G2, G3 और G4। There are 4 girls, G1, G2, G3, G4। 4C1 में सपोज करो आई वो G1। अभी 7C2 में सपोज करो आपको मिला, for 7C2, let me write it, 7C2
आपको कॉम्बिनेशन मिला, लेट्स सपोज B2 G2. Let's say this is team number 1. This is our team 1. Let's say another case. अभी सपोज करो 4C1 में इंस्टेड ऑफ G1 you got G2, है ना. 4C1 में इंस्टेड ऑफ G1 you got G2, and in 7C2 you got B2 G1. Possible है, right? So according to this method second, these two are different teams. According to method second, these two are different teams. This is team number 1, this is team number 2. Can you tell me guys, are these two different teams? क्या ये दो different teams हैं? Composition देखो जरा. Look at the composition. Are these two different teams? Correct ना? So now the question is कि सर डबल काउंटिंग हो रही है. इस मेथड में क्या हो रहा है? डबल काउंटिंग हो रही है. तो ऐसा मेरा क्वेश्चन यही है. नाउ माय क्वेश्चन इज, प्रिशा आपने बताया कि परफेक्टली फाइन कि सर ये डबल काउंटिंग हो रही है, बट मेरा क्वेश्चन ये ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई शुड बी इवन थिंक अबाउट कि डबल काउंटिंग हो रही है? लॉजिक तो परफेक्ट फाइन लग रहा है, लॉजिक में तो कोई मिस्टेक नहीं है. ऐसा क्यों हुआ? आपने नंबर से बोला परफेक्टली फाइन कि सर ऐसा ऐसा हुआ, G1 G2 हो गया. सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज हैपनिंग? यस रूपेश. टेबल हमें क्योंकि हमने 3 प्लेसेस ली थी और सेकंड प्लेस 7C1 आएगा और थर्ड प्लेस पे 6C आएगा. नहीं नहीं, यस प्रिशा. Sir, because the same people are coming again and again in the same group. That's why in permutation we would take these two groups as teams as separate, but in combinations it is the same team because the same people are coming again and again, and it's only a difference in arrangement, but there's no difference in the constitution of the group. Okay, correct, correct ना. So that is the correct explanation. अभी आप ध्यान से समझा प्लीज, है ना. जो हमने NCR सीखा था, who will tell me the definition of NCR? जो मैंने definition लिखाई थी, जल्दी बताओ. What is the last line of it? So selecting R people in from n different objects. And distinct object for a fixed specified purpose. वो और add कर लेना उसमें. Okay sir. For a fixed specified purpose. ये बहुत important line है. What is NCR? The meaning of NCR, the number of ways of selecting R object out of n distinct object. ये वाली line बहुत important है. For a certain fixed specified purpose. अभी इस लाइन की वजह से मेथड सेकंड फेल हो गई. ये लाइन मैं आपको समझा देता हूं, पहले आप लिख लो. एनसीआर का मीनिंग क्या है? द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉर अ सर्टेन फिक्स्ड स्पेसिफाइड पर्पस. ठीक है, अभी देखते हैं ये क्यों डेफिनेशन फेल हुई. ध्यान से देखिए प्लीज, फोकस हियर. और नहीं समझ में आए तो प्लीज रेज योर हैंड. पहले समझ लीजिए, आप बीच में हाथ मत उठाइए प्लीज. अंडरस्टैंड, आई विल गो वेरी स्लो.
देखिए, दिस इज वन गर्ल एंड दीज आर टू पर्सन्स। वन गर्ल मैंने कितने से चूज करी? 4C1। कितनी लड़कियां बच गई? 3। ठीक है। अच्छा, पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस? पर्पस है टीम बनाना। पर्पस क्या है? टीम बनाना, टू मेक द टीम। तो ध्यान से देखना, पहले इन 4 लड़कियों को, फॉर फर्स्ट दिस इवेंट, these 4 girls went under NCR. These 4 girls went under NCR for the purpose of team. Understood? First, these 4 girls went under NCR for the purpose to make team. Now for this place, कितनी बच गई यहाँ पे लड़कियां? 3. Now you're adding these 3 with this 4 and applying the same for 7C2. So these three girls, they are going under NCR, that is 7C2, for the same purpose, that is team. समझ में आ रहा है? दैट आपने सिर्फ बॉयज के ऊपर लगाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बॉयज जो है वो एनसीआर के अंदर गए नहीं है। ये 3 लड़कियां ऑलरेडी पहले एक पर्पस के लिए एनसीआर के लिए जा चुकी हैं। नाउ यू आर अगेन अप्लाइंग ऑन दीज 3 गर्ल्स एनसीआर, सो दैट इज रॉन्ग। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन क्रिएट हो जाता है, एक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। ये मैटर करने लगता है कि पहले कौन गर्ल आ रही है, कि पहले G1 आ रही है कि G2 आ रही है। करेक्ट ना? सो द लॉजिक ऑफ एनसीआर जो है आप अप्लाई कर सकते हो कब? डिफरेंट पर्पस के लिए। आपके पर्पस डिफरेंट है, आप अप्लाई करते रहो। बट यदि पर्पस सेम है, इफ द पर्पस इज सेम, यू कैन नॉट अप्लाई द सेम एनसीआर अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल, एक और 2 एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, मेरे को 2 कार्ड चूज करने हैं, तो व्हाट इज द आंसर? 52C2। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसा करो, पहले एक कार्ड चूज कर लो 52C1, फिर दूसरा कार्ड चेक कर लो 51C1। इनमें से कौन सा करेक्ट है बताओ मेरे को, विच वन इज करेक्ट, टॉप वन और बॉटम वन? टॉप वन करेक्ट ना? बॉटम वन में क्या प्रॉब्लम है? बॉटम वन में ये प्रॉब्लम है बेटा कि आपने पहले 52 में पर्पस क्या था? 2 कार्ड चूज करना। पर्पस क्या था? कार्ड चूज करना। तो पहले आपने 52 कार्ड चूज करे, 2 फाइन। अभी ये वाला देखो 52C1, तो ये करेक्ट है, चलो। बट यहाँ के जो बचे 51 ऑब्जेक्ट हैं वो सेम पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। यदि ये 52C1 किसी दूसरे पर्पस के लिए होता ना तो आंसर करेक्ट था। अभी देखो मैं इस नीचे वाले को करेक्ट बनाता हूं। मैं बोलता हूं कि आपको 2 लेटर चूज करने हैं और आपको टैटू कराना है, एक राइट हैंड पे कराना है, एक लेफ्ट हैंड पे कराना है, तो फिर ये नीचे वाला करेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो है ये राइट हैंड के लिए हो जाएगा, ये लेफ्ट के लिए हो जाएगा, और वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, क्योंकि पर्पस डिफरेंट है। समझ में आ रहा है कि फॉर द सेम पर्पस the same object will not go under NCR twice because it creates the order, और order को हम combination में count नहीं करते हैं, they are considered as one, as the basic definition of combination. Now अभी किसी बच्चे को डाउट है तो raise your hand. Yes, Ira. Ira from Andheri.
You raised your hand. Some technical problem. Or no? Yes, Anmol. I do not understand why the second one is Your voice is very low. Beta, speak. Sir, I do not understand why the second method is wrong. Why the second method is wrong? I already explained you ना, explained you n number of times. Order create हो जाता है. Permutation order count करने लगते हो और हम combination count कर रहे हैं. G1 G2 का example समझ में आया था? Yes, sir. हाँ तो बस वही तो है. Okay, sir. Thank you. Yes, Swapnil. सर मुझे एक्चुअली मेथड नहीं समझा आपने 51C1 आई मीन फिर परम्यूटेशन क्यों क्रिएट हो जाएगा वो नहीं समझा. ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा ना बेटा, बोला तो मैंने आपको. पर क्यों वो देखो नहीं जैसे समझा. फॉर एग्जांपल आपके पास 52 कार्ड है, आपको 2 चूज करने हैं. तो कितने तरीके से कर सकते हो? 52C2. आप बोलोगे सर ऐसा मत करो. क्या करो, पहले एक कार्ड चूज कर लो 52C1, फिर दूसरा कार्ड चूज कर लो 51C1. तो सपोज करो मेरे को चूज करना था एस ऑफ हार्ट और किंग ऑफ हार्ट. तो पहले आप बोल रहे हो कि सर एस ऑफ हार्ट आया, फिर किंग आया, और किंग आया और एस आया. ये दो डिफरेंट केसेस हैं. क्या ये दो डिफरेंट केसेस हैं? नहीं. तो फिर डबल काउंटिंग हो रही है ना इस वाले केस में. सर जैसा आपने कहा था सर, और फर्स्ट मेथड क्यों रॉन्ग होगा, राइट होगा? ये वाला फर्स्ट मेथड हमने जहाँ पर हाँ, इसमें तो सीधा सिलेक्शन हो रहा है ना, ऑर्डर पे मैटर ही नहीं कर रहा है. सीधा सिलेक्ट कर दो उठा के 2. ये 2 सिलेक्ट कर दिया या ये 2 सिलेक्ट कर दिया, डजंट मैटर, एक ही मेथड. उसकी बात नहीं करो सर. हमने जो 3 मेथड्स में जो फर्स्ट मेथड किया था सर, जहाँ पर हमने 2 गर्ल्स 1 बॉय, वो वाला करेक्ट क्यों हुआ? उसमें सारे केसेस हो गए ना. कोई भी ऐसा केस है जो कि गलत है बताओ. तो आप जो बोल रहे हो कि उसमें, हाँ वेरी गुड, चलो इसका क्वेश्चन लेते हैं कि सर उसमें भी तो आप ब्रेक करके लगा रहे हो. चलो वेरी गुड है ना. ये क्वेश्चन बच्चा बोल रहा है कि सर जो पहला मेथड है उसमें भी तो आप सी ब्रेक करके लगा रहे हो ना. आपने क्या लगाया, पहला 1 गर्ल लगाया और 2 बॉयज लगाए. तो ध्यान से देखना, इसके लिए ऑप्शन क्या आया था 4C1, दूसरे के लिए ऑप्शन क्या आया था 2C2. तो सर यहाँ पे भी तो आप ब्रेक कर रहे हो ना सर. फिर ऐसा यहाँ पे सही क्यों है, वहां पे गलत क्यों है? अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, 4 बॉयज 4 गर्ल्स, ध्यान से देखना, ये वाला 4C1 किस पर्पस के लिए यूज हुआ, जल्दी बताओ. फॉर व्हाट पर्पस दिस इज यूज्ड? टीम बनाने के लिए. टीम बनाने के लिए पर्पस है. वेरी गुड, ठीक है ना. कौन से ऑब्जेक्ट इस पर्पस के लिए अंदर जा रहे हैं, जल्दी बताओ. करेक्ट है, बिल्कुल आपने सही बोला सर, टीम बनाने के लिए जा रहे हैं. इस पर्पस में कौन से ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, जल्दी बताओ. विच चैप्टर्स आर अंडरगोइंग फॉर दिस पर्पस? गर्ल्स. गर्ल्स. तो ये 4 गर्ल्स के लिए है. चलो वेरी गुड. अभी ये वाला दूसरा वाला जो 4C2 है, ये किसके लिए है? सेम पर्पस के लिए. बट क्या ऑब्जेक्ट सेम है? क्या ऑब्जेक्ट सेम है? नहीं. नहीं ना. तो मैंने यही लिखा है ना आपको, दैट फॉर सेम पर्पस द सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट गो अंडरगोस ट्वाइस. सेम पर्पस के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट आपने लगाए, ओके फाइन. आप 52(1) और 51 वाले में है, आप 51 ऑब्जेक्ट फिर से रिपीट कर रहे हो ना बेटा. यहाँ पे जो 7C2 वाला था उसमें 3 गर्ल सेम पर्पस के लिए फिर से एनसीआर गई. तो द सेम ऑब्जेक्ट कैन नॉट गो एनसीआर फॉर द सेम पर्पस. यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, पर्पस दोनों के लिए सेम है कि टीम बनाना. बट द फर्स्ट इज अप्लाइड ऑन गर्ल्स, द सेकंड इज अप्लाइड ऑन बॉयज. अलाउड है. ओके सर, समझा. है ना, क्योंकि 7C2 में क्या होगा बेटा, उसमें ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा.
तो आप अलग अलग टाइम इंस्टेंस पे एनसीआर को ऐसा ब्रेक करके लगाओगे ना, इफ यू अप्लाई एनसीआर बाय अप्लाइंग ब्रेक करके, तो उसमें ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। आपका पर्पस यदि डिफरेंट है तो आपको जितने बार अप्लाई करना है करो, नो प्रॉब्लम। यस, कॉम्प्लीमेंट आपको सारी मेथड आनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, कॉम्प्लीमेंट्री मेथड भी यूज कर सकते हो। यस आरव। सर आपने कहा कि वो डबल काउंटिंग हो रही है। हाँ सर तो वो कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से 52 आंसर आ रहा है हाँ, और वो सेकंड मेथड से 84, तो डबल काउंटिंग तो नहीं हुआ। डबल मतलब एग्जैक्टली नॉट डबल, 52 का डबल करोगे तो 104 हो जाएगा। ऐसे कई केसेस हैं जो कि मिक्स्ड भी होंगे बीच में। अच्छा ओके सर, थैंक यू। So the first method is correct, third method is correct, second method is wrong. क्यों? क्योंकि आपने एनसीआर एक ही पर्पस के लिए 2 बार लगाया, ब्रेक करके लगाया। चलो अभी हम क्या करेंगे गाइस, नाउ वी विल लर्न वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। वी विल लर्न 3 टेक्निक्स, है ना। इस चैप्टर में सिर्फ 3 टेक्निक्स हैं और बाकी के सभी उनके वेरिएशंस हैं। इस चैप्टर में ऑल देयर आर 3 टेक्निक्स एंड ऑल रेस्ट आर वेरिएशंस। फाइन, सो हेडिंग दे दो द टेक्निक 1, फर्स्ट टेक्निक, है ना। मैं क्यों करा रहा हूं आपको ये सब? अभी आपका फाउंडेशन बिल्ड हो गया है, करेक्ट ना। नाउ आपको पता है फैक्टोरियल क्या होता है, नाउ आपको पता है एनसीआर क्या होता है। नाउ ओनली आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेक्निक्स ना। मैं क्लासिफाई क्यों कर रहा हूं, व्हाई आई एम क्लासिफाइंग दिस टेक्निक्स, सो दैट यू विल बी एबल टू थिंक वेरी क्लियरली। आपको बहुत हेल्प मिलेगी क्लियरली सोचने में, ठीक है। सो द टेक्निक 1 is called, this chapter is only PNC, correct na? This technique is called selection technique. क्या करती है ये टेक्निक? What does this technique do? This technique help us in only selection. ये सिलेक्शन करने में हमको हेल्प करती है। What does this technique help us? This technique help us in only selection. कि आपको सिलेक्ट करना है तो वो आपको करके दे देगी। दिस टेक्निक इज एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ एनसीआर। दिस टेक्निक इज एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ एनसीआर। लेट्स सपोज आपके पास 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। मेरे को 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। आई नीड टू select 3 out of these 8 object. Tell me the number of selection possible. Tell me the number of selections possible. 8C3. Fine. Perfect. 8C3 is the correct answer. Correct na? 8C3 is the correct answer. Okay. Next. अभी ध्यान से समझो ना। Okay guys, 8C3 correct answer. ध्यान से सुनो। Next question. Please listen carefully. Next question. Stop answering. Now let's suppose ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट 8 के 8 आइडेंटिकल है। अभी मैंने आपको 8 के 8 क्या दिए थे? डिस्टिंक्ट। लेट्स से नाउ आई गिव यू ए 3 हो गया, 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 ए हैं आपके पास। आपको 3 सिलेक्शन का बनाना है। नाउ हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल?
Only one? Only one? There is only one way? कौन सा पॉसिबल है? A, that's it. ये ले लो, A और A, that's it. इसके अलावा कोई केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि सभी के सभी सिमिलर हैं. आपको पता ही नहीं चलेगा आपने ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया. तीनों के तीनों सिमिलर हैं, आइडेंटिकल है. तो डिस्टिंक्ट का आंसर क्या आया? एनसीआर. आइडेंटिकल का आंसर क्या आया? 1. डिस्टिंक्ट का आंसर एनसीआर, दैट इज 8C3. आइडेंटिकल का आंसर क्या आया? 1. अभी आप ऐसा करो, मिक्स्ड केस ले लो. मिक्स्ड केस में क्या करो? कुछ डिस्टिंक्ट ले लेते हैं और कुछ आइडेंटिकल, और फिर मेरे को आंसर बताओ. लेट मी गिव यू द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो जरा, लुक एट दिस क्वेश्चन. दी ए, ठीक है, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जी. ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है. These are object I having. चलो सोचो, बताओ क्या आंसर आएगा. काउंट कर लो ना, ऑब्जेक्ट लिखे हैं आपके सामने. कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. टोटल 10 ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें से कुछ सिमिलर है, मतलब कुछ आइडेंटिकल है और कुछ डिस्टिंक्ट है. ये मिक्स्ड केस है. आइडेंटिकल का केस मैं आपको आंसर बता चुका हूं, 1 है. डिस्टिंक्ट का आंसर एनसीआर है. इसका आंसर क्या है वो पूछ रहा हूं मैं आपको. थ्री ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने बेटा. 3. You need to select 3 object. No. अभी तक किसी भी बच्चे ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है. चलो देखो अभी, है ना, इसको कैसे करते हैं ये देखो. द बेस्ट वे, ध्यान से समझना गाइस ना, स्टॉप आंसरिंग, फोकस हियर. मैं करता हूं, आपको नहीं करना अभी. फोकस हियर, अंडरस्टैंड प्लीज. देखो, द बेस्ट वे टू आंसर मिक्स्ड केसेस इज टू मेक केसेस, है ना. आइडेंटिकल के केस में तो आंसर 1 आने वाला है, डिस्टिंक्ट के केस में एनसीआर आने वाला है. मिक्स के केस में आप क्या करोगे? यू विल मेक दी केसेस, ठीक ना. लेट मी इरेज दिस एंड राइट दिस क्वेश्चन अगेन. लेट मी राइट द नंबर ऑफ लेटर्स. कितने थे? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और जी. फाइन. कई बच्चे जो हैं इसका आंसर क्या दे रहे थे? 10C3 दे रहे थे. ये तो बिल्कुल ही फूलिश है. 10 के 10 डिस्टिंक्ट नहीं है. कई बच्चे बोल रहे थे 1, नहीं, आइडेंटिकल नहीं है. कई बच्चे बोल रहे हैं 7C3,
ये भी रॉन्ग है, करेक्ट ना, क्योंकि 7C3 में बेटा आपने सिर्फ डिस्टिंक्ट केसेस काउंट करे हैं। फॉर एग्जांपल आपने ABC काउंट कर लिया, ठीक है, आपने CDF काउंट कर लिया, व्हाट अबाउट AAG, व्हाट अबाउट GGB, ऐसे वाले केसेस भी तो बनेंगे, तो ये 7C3 में नहीं आ रहे हैं ना, करेक्ट। अच्छा, ये बात समझ में आती है क्या कि ये जो भी हमारा आंसर होगा, वट एवर बी द आंसर, ये आंसर ये वाला उसका एक पार्ट होगा। ये बात समझ में आती है आपको? सर वट एवर बी द आंसर, ये जो 7C3 होगा ये उस आंसर का एक पार्ट होगा, करेक्ट। सो लेट्स ट्राई टू मेक केसेस ना। अभी फोकस कर लो, बाद में सॉल्व कर लेना। I'll give you the one other question to solve, don't worry, फोकस कर लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस्टेक करोगे। स्टॉप आंसरिंग एंड फोकस। अभी देखो मैं केस बनाना स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो मेरा केस 1 है, केस 1 है, देखो टोटल 3 सिलेक्ट करना, ध्यान रखना कि तीनों के तीनों मेरे को आइडेंटिकल मिल जाए। केस 1 क्या है, मेरे को तीनों के तीनों आइडेंटिकल मिल जाए। तो ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज है बताओ? सिर्फ G वाली, और कोई है ही नहीं। सो इसका आंसर क्या आएगा? 1। केस 2, केस 2 है, मेरे को 2 आइडेंटिकल मिल जाएं और एक डिस्टिंक्ट मिल जाए। 2 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट। अभी आइडेंटिकल वाले केस ध्यान से सुनना, और केस 3 है, मैं केस 2 का भी आंसर लिखूंगा। केस 3 है 3 डिस्टिंक्ट। तो एक चीज बताओ, आपने जो 7C3 आंसर ढूंढा था वो कौन से केस का आंसर है? थ्री, करेक्ट ना, वेरी गुड, है ना। तो मतलब आपके आंसर का ये वाला पार्ट केस 3 वाला तो है। अब बाकी ये 2 केस का आंसर फाइंड करके मेरे को ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है? ऐड करना है, ठीक ना। बाकी सबका आंसर फाइंड करके मेरे को सिंपली ऐड कर देना है। तो पहले केस का आंसर तो आ गया, तीसरे केस का भी आ गया। लेट अस ट्राई टू फाइंड द आंसर फॉर सेकंड केस, ठीक है। तो मैं पहला और दूसरा केस रफ कर रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू फोकस ओनली ऑन द केस second, because case first and case second, case third is executed with NCR, case 1 is simply 1. Let's focus on case number 2. चलो, 2 आइडेंटिकल, तो बताओ मेरे को 2 लेटर आइडेंटिकल होने चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं? या तो AA हो सकता है, दिस इज वन ऑप्शन, या G और G हो सकता है। 2 लेटर ध्यान रखना, मैं यहाँ पे 3 नहीं लूंगा, 2 है, ठीक है। तो या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। इन दोनों में से मेरे को कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो कितने तरीके से कर सकता हूं? 2C1, करेक्ट। इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो 2C1। तो अभी ये 2 आइडेंटिकल के लिए हो गया, है ना। अभी ध्यान से देखना, क्योंकि अभी डिस्टिंक्ट वालों में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, ध्यान से समझना। सपोज करो ये AA वाला है और ये GG वाला है, तो सपोज करो मैंने ये आइडेंटिकल वाले में पहले AA चूज कर लिया। अभी कौन बचा? अभी B बचा, डिस्टिंक्ट ना, B बचा, C बचा, D बचा, E बचा, F बचा, G भी बचेगा ना, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट जो है ना, ये इस आइडेंटिकल से डिस्टिंक्ट है। कई बच्चे इसको एब्सोल्यूट डिस्टिंक्ट ले लेते हैं, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो ना वेलोसिटी, ये एब्सोल्यूट डिस्टिंक्ट नहीं है, ये डिस्टिंक्ट इसके रिस्पेक्ट में, आइडेंटिकल के रिस्पेक्ट में डिस्टिंक्ट है ना। तो क्या G A से अलग है? हाँ अलग है, दैट्स व्हाई यहाँ G काउंट हो रहा है। बट सपोज करो आप बोलो कि सर यहाँ करो ऐसा, AA की जगह GG ले लो, ठीक है,
तो मैं यदि सपोज करो ए की जगह मैंने जी ले लिया तो यहाँ ए बच जाएगा ना, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे 6 लेटर आएंगे। सो इन एनी केस यहाँ पे कितने लेटर आने वाले हैं? 6। आपको कितने चूज करने हैं? 1, क्योंकि 1 डिस्टिंक्ट है। सो 6C1। तो क्या आंसर आएगा? 2C1 इंटू 6C1। अभी इसमें कोई डाउट है? देन रेज योर हैंड। Yes. Sir, if we choose G also in the second box, then G will be one case, and then the first case G will also be similar. Then won't be it counted twice? You are saying you have in two identical, you have chosen G. Correct? Now, what is left? A. A is left. A is different than G. I'm not taking G here. So how many are there? 1, B, C, D, E, F. These 5 are always there. I'm not taking G because you're already taking G. So A would be here. So total how many? 6. That's why 6C1. यहाँ पे G लिया ही नहीं तो G क्यों आएगा? Yes. Yes. Sir, actually, I was asking कि last sum जो था उसमें complementary method से solve कर सकते थे, but sir इस sum में भी can be solved by complementary method. कैसे करोगे? Like हम पहले जो क्योंकि इसमें एटलीस्ट तो कुछ है नहीं ना बेटा, एटलीस्ट कहाँ है? नहीं सर, क्योंकि पहले हम उतना फाइंड कर सकते हैं कि जो रिपीट हो रहा है उसको हम पहले फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद जो रिपीट नहीं हो रहा है लाइक जैसे बी सी डी एफ, और फिर वो कर सकते हैं फाइंड। करके देखो बेटा, आंसर यदि आ रहा है तो कर सकते हो, करके देखो। ठीक है सर। यस रितिजा। सर मुझे केस 3 नहीं समझ में आया। केस 3 में क्या था बेटा? व्हाट वाज केस 3? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेना, मतलब 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट चूज करना है आपको। यस सर। कितने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं? सर 7। तो 7C3 सबसे इजी है, जो बहुत से बच्चों ने पहले आंसर किया था। समझा, थैंक यू। यस बोलो ध्रुव शारदा। प्रत्युष त्रिपाठी फ्रॉम बोरीवली, बोलो। हाँ सर, आपने ये सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई क्यों किया? बेटा 2 स्टेजेस बन रहे हैं, आपने पूरी लेक्चर अटेंड, जो बच्चा ये अभी भी स्टेजेस और केसेस के बीच फंस रहा है ना, मतलब उसने रिवाइज ही नहीं किया हुआ है। इट्स माय रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच ऑल द रिकॉर्डिंग। ओके सर। Actually, I got it. Okay. Yes, Ashish. Sorry, sir, I didn't have a. चलो ठीक है। हाँ, आंसर इज 12। बेटा हाथ तभी रेस करना डाउट है, अदरवाइज आप हाथ रेस करके बोलते नहीं हो, देन नो मीनिंग।
with wasting time. Yes, Udish. Sir, I actually had the doubt on another question. Sir, Beta, I was doing on. keep the doubt relevant to this question only, and Okay. try to understand what I'm teaching you. बाकी के doubts बाद में. Okay. Yes, Swapnil. सर मुझे लास्ट टाइम समझा कौन सा वाला? हमने दो केसेस लिया जहाँ पर ए के साथ बी सी डी ई एफ और फिर जी जी के साथ बी सी डी ई एफ ए, उसके बाद वाला स्टेप नहीं समझा. ये केस 2 नहीं समझा आपको कि किस तरीके से मैंने एनसीआर अप्लाई किया? हाँ देखो, केस 2 क्या बोल रहा है कि आपको दो आइडेंटिकल चाहिए. तो बताओ मेरे को दो आइडेंटिकल कौन कौन से लेटर हो सकते हैं? ए और जी जी. ए और जी जी. ठीक है, ये दो ऑप्शन है, मेरे को कोई एक ऑप्शन चूज करना है. एक ऑप्शन से मेरे को दो लेटर मिल जाएंगे क्योंकि वो दो आइडेंटिकल हैं. कितने तरीके से कर सकता हूँ? 2C1. तो 2C1 आ गया. कोई डाउट? नहीं. अभी मैंने आपको बोला कि बेटा ये डिस्टिंक्ट है ना, ये इस आइडेंटिकल के रिलेटिव डिस्टिंक्ट है, जस्ट लाइक फिजिक्स. ये ऐसा मत समझना कि इस क्वेश्चन में सिर्फ बी सी डी ई और एफ लेटर डिस्टिंक्ट हैं, जी और ए आइडेंटिकल है. नहीं नहीं, ये डिस्टिंक्ट इसके रिलेटिव आइडेंटिकल डिफाइंड है. यदि आपने यहाँ पे ए चूज किया है तो आप ये डिस्टिंक्ट में जी ले सकते हो कि नहीं, क्योंकि जी तो ए से अलग है ना. हाँ. सिमिलरली यदि आपने यहाँ जी चूज किया है तो आप यहाँ ए ले सकते हो ना. तो टोटल ऐसे कितने, हर केस में यहाँ पे 6 ही डिस्टिंक्ट आने वाले हैं. हाँ. तो 6 डिस्टिंक्ट में से आपको एक सिलेक्ट करना है. कितने तरीके से कर सकते हो? 6C1. 6C1. सर पर इधर वैसा कुछ केस नहीं होने वाला जहाँ पर हमने वो पहले क्वेश्चन में मेथड 2 को एलिमिनेट कर लिया था, वैसा कुछ इसमें हो सकता है? नहीं नहीं, कहाँ होने वाला है? देखो कोई सेम ऑब्जेक्ट जा रहा है क्या? नहीं. फिर चलो, यस ध्रुव शारदा. So now how will we find the final answer? फाइनल आंसर यू ऐड ऑल दी केसेस. पहले केस से कितना आंसर आया जल्दी बताओ? 1. सेकंड केस से कितना आंसर आया? सेकंड केस क्या था? 12 ना? हाँ 12. सेकंड केस से कितना आंसर आया? 12 भी आ रहा है? कितना आ रहा है एक मिनट चेक. 12 आ रहा है. 12. हाँ 12. थर्ड से 21. तो ऐड कर दो सबको. अच्छा ओके, थैंक यू. एनी डाउट? 35 आ रहा है बेटा, 21 नहीं, 35 है. थर्ड से 35 आएगा. कैलकुलेट सही करो, है ना? इट्स 7C3. 7C3 35 सबको ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा? 48. चलो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, आराम से टाइम लेके करना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? चलो, हाँ क्या डाउट है बोलो. आरव. सर वो आपने एक सिखाया था ना मेथड जिसमें 10C3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल करके कर सकते हैं. ये क्वेश्चन में वो जो आइडेंट केसेस, सारे केसेस का 48 आंसर आ रहा है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि वो आपने एक बार पहले भी सिखाया था कि नंबर मतलब नहीं सर सॉरी, वो फैक्टोरियल था. ठीक है, सॉरी सर. चलो, now I'm giving you a question. I'm taking any doubt right now. ठीक है,
Yes, Anmol, बोलो जल्दी से बेटा. Last doubt है, and I'll give another question. Anmol, Bora from Dadar, जल्दी बोलो. Yes, sir. Sir, in the case 2, you said the answer is 12, but actually it is 2 factorial to 6 factorial, right? So फैक्टोरियल it's, फैक्टोरियल क्यों आएगा बेटा? NCR 2C1 की वैल्यू कितनी आएगी और 6C1 की वैल्यू कितनी आएगी? oh yeah, sorry, sir. Yeah, फैक्टोरियल कहाँ से आ गया? फैक्टोरियल वेयर इट इज कम? sorry, sir. 2C1 फॉर्मूला लगाओ NCR का. Yeah, sorry, sir. चलो अभी क्वेश्चन लिखो. Find the number of ways to select 4 letters. To select 4 letters. 4 लेटर मेरे को सिलेक्ट करने हैं. 4 letters सिलेक्ट करने हैं. From the word sleeplessness. From the word sleeplessness. Find the number of ways to select 4 letters from the word sleeplessness. Yes, Anmol. If your doubt is cleared, lower your hand. Another doubt, then only raise your hand. Oh, sorry, sir. I did not lower my hand. Chalo, karo. Let me see how many of you can do it. कितने केसेस बन रहे हैं तो ये आंसर करो. फर्स्ट आंसर, हाउ मेनी केसेस आर मेकिंग योर मेड. आराम से टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है. करेक्ट. 5 केसेस बनेंगे बेटा. करेक्ट. पांचों केसों के आंसर निकाल दो. ठीक है. और उन केसेस के हर केस के आंसर्स को ऐड कर दो. दैट इज द सिंपल वे ना. सभी 5 केसेस का आंसर निकाल के ऐड करना है. यस स्वप्निल. सर जो पिछले क्वेश्चन में सर हम लोग ने वन आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट केस नहीं लिया. वन आइडेंटिकल और 2 डिस्टिंक्ट क्या होगा? वन आइडेंटिकल 2 की डिस्टिंक्ट को केस ही नहीं बनेगा ना. क्या बनेगा बताओ जरा. वन आइडेंटिकल 2 डिस्टिंक्ट. तो ये वन आइडेंटिकल किससे आइडेंटिकल? ओके सर. तो सर इसमें 5 केस क्यों बन रहा है इस क्वेश्चन में फिर? क्या? तो सर आज इस सोचो क्वेश्चन में 5 केस क्यों बन रहा है? सोचो बनेंगे. यस सॉरी. सर जो उसने बोला वन आइडेंटिकल और 2 डिस्टिंक्ट, वो तो 3 डिस्टिंक्ट बन जाएगा ना. हाँ करेक्ट. परफेक्ट. करेक्ट.
Yes. Dhruv Sharda from Andheri. So last case will become 3 distinct, right? 3 डिस्टिंक्ट क्यों बेटा? 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं ना, 3 डिस्टिंक्ट क्यों आएगा? Sorry, 4 distinct. Yes. Okay. Yes. चलो आंसर चेक करते हैं। आंसर तो बेटा नहीं अर्थाना, कैलकुलेशन चेक कर लो। हाँ, श्रुति डांगे करेक्ट है। कैलकुलेशन सही तरीके से कर लेना बेटा। काइंडली चेक, क्रॉस चेक द कैलकुलेशंस, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाएंगी। नहीं, नो नो रोहन, नो आहव रॉन्ग है। नहीं वो भी रॉन्ग है। एक ही बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया अभी, श्रुति डांगे चंबू डागे, सॉरी। अर्थाना आप आंसर के आसपास हो, देखो यार क्या मिस्टेक करोगे। कैलकुलेशंस पहले जो आंसर दिया था करेक्ट ही था, बट थोड़ा मिस्टेक। नहीं यार, नो, क्लोज हो बट दैट इज नॉट द आंसर। नो, कोई केस आपने अंडर काउंट या ओवर काउंट किया होगा, चेक करो। नहीं आशी, नो दीप्तांशु, नहीं ओवर काउंट करो, कुछ मिस्टेक करो। पिशा आप भी थोड़ा क्लोज ही हो, देखो बहुत से बच्चे सेम मिस्टेक कर रहे हैं लगता। नो सोहानी रॉन्ग, नो झलक, नो भिक्षा। करेक्ट आंसर इज 36। नो, करेक्ट ना? तो देखो, हाँ 36 द करेक्ट आंसर। अभी मैं केस बाय केस जा रहा हूँ और सारे केसेस बच्चे अपने आंसर चेक करेंगे और चेक करेंगे कहाँ मिस्टेक कर रहे थे, है ना? देखो प्लीज, आई एम गोइंग वन बाय वन, अंडरस्टैंड। पहला ऑप्शन क्या है? केस 1। मैं पांचों के पांचों केस बनाऊंगा, पांचों का आंसर निकालूंगा, लास्ट में आप ऐड कर लेना। फर्स्ट केस में बना रहा हूं, चारों के चारों लेटर जो हैं वो आइडेंटिकल निकले। चारों के चारों लेटर क्या निकले हैं? आइडेंटिकल।
So let me first erase this and write letter in a different way. How many s are there? 5 s are there. 1 2 3 sorry 3 4 5. These are 5 s's. How many e are there? 4. 1 2 3 4. These are 4. How many l are there? 2. And then n is there, and then p is there. Total letter 13. Let's try to understand. पहला वाले में मेरे को लगता है बहुत से बच्चों ने मिस्टेक की होगी, जिन्होंने आंसर 35 दिया था उन्होंने पक्का मिस्टेक की। 4 आइडेंटिकल क्या क्या हो सकते हैं? चारों के चारों या तो एस हो जाएं या चारों के चारों ई हो जाएं। इन दो ऑप्शन में से मेरे को एक चूज करना है। कितने तरीके से कर सकता हूं? 2C1 दैट इज 2। किन किन बच्चों ने पहले केस का आंसर गलत निकाला था? टू सी वन समझ में आया? जिन्होंने 35 निकाला था उन्होंने तो 100% गलत निकाला होगा। जिन्होंने 35 आंसर दिया था, प्रिशा एंड ऑल, आपने पहले केस का आंसर 1 लिया होगा, आई एम क्वाइट श्योर। कोई डाउट पहले केस में? चलो, यस, व्हाट इज द डाउट? फर्स्ट केस में जो डाउट रिलेवेंट रखना बेटा, जो पूछ रहा हूँ वही पूछना। यस, पूछो। अक्षन मोहन फ्रॉम अंधेरी। तो ठीक है। अच्छा, मुझे उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ था। मुझे लगा कि ये सो मतलब कैसे कि अगर मतलब सिर्फ दो ही वेज है कि पॉसिबल है कि आइदर SSS 4 है और ई 4 है ना। तो ओके, हाँ ओके, अच्छा समझा सर, समझा, गॉट इट। यस, या Ira Pruthi from Andheri. Speak. Unmuted you. Some tech problem. Rupesh Tripathi. Sir, can you please explain it again? Rupesh, what part you didn't understood? मेरे को वो बताओ। सर, वो आपने 5 अलग अलग केस क्यों बनाए? 5 अलग अलग केसेस क्यों बनाए सर? क्योंकि ये मिक्स सिस्टम है, कुछ भी आ सकता है। आप 100% श्योर हो कि चारों के चारों आइडेंटिकल आएंगे? आप 100% श्योर हो कि चारों के चारों डिफरेंट आएंगे? नहीं सर। तो फिर क्या करना पड़ेगा? 5 अलग अलग केसेस जिसमें 3 आइडेंटिकल और 1 डिस्टिंक्ट, वैसे वैसे। तो अभी केस 1 समझ में आया? हाँ सर, ठीक है सर, थैंक्स। यस रोहन। सर मैंने अपना हैंड नीचे नहीं किया। चलो, case 1 is done. Let's focus on case 2. Two option है ना? This is option 1. This is option 2. Out of these two options, that is 2, you need to choose one option, that is 1. So 2C1. क्या डाउट है अभी इसमें?
चलो सेकंड केस में क्या ले रहा हूं कि 3 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट. लेट मी राइट द सेकंड केस. आई होप पहले केस सबको समझ में आया. सेकंड केस 3 आइडेंटिकल एंड 1 डिस्टिंक्ट. 3 आइडेंटिकल अभी क्या क्या हो सकते हैं? लेट मी राइट. ये किसका म्यूट करो. दास फ्रॉम बोरीवली. यस 3 आइडेंटिकल 1 डिस्टिंक्ट. अभी 3 लेटर आइडेंटिकल होने चाहिए. कौन कौन से हो सकते हैं? या तो 3 ऐसे हो सकता है ऑप्शन 1, या 3 ये हो सकता है ऑप्शन 2. और कोई ऑप्शन पॉसिबल है क्या? नहीं. तो दिस इज ऑप्शन 1, दिस इज ऑप्शन 2. 2 ऑप्शन में से मेरे को कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो 2C1 इनटू डिस्टिंक्ट. अभी डिस्टिंक्ट काउंट करो. सेम रहेगा लास्ट क्वेश्चन वाले जैसा. यदि मैंने यहाँ चूज किया तो यहाँ E अवेलेबल रहेगा. E चूज किया तो S अवेलेबल रहेगा. तो 1 2 3 4 4 में से एक सिलेक्ट करना है. तो 4C1. So the answer of second would be 8. Yes. Yes, Swapnil. सर वो 2C1 होगा कि 2C3 होगा? जोर से बोलो स्वप्निल. सर एक्चुअली जो पहला केस था सर, जहाँ पर हमने सारे डिस्टिंक्ट लिया था, तो उसमें अगर हम लोग परम्यूटेशन यूज करते फिर भी सेम आंसर ही आता. नहीं, परम्यूटेशंस. आप परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट. क्या हम यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं चीजों को? नहीं. तो फिर ओके सर. सर और इधर हमने 2C1 लिया क्योंकि हम लोग ने SSS और EE को अलग अलग केसेस पकड़े इसलिए. हाँ, मतलब ये ऑप्शन 1 है मेरे पास, ये ऑप्शन 2 है. ऑप्शन में से मेरे को कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो मेरे को 3 आइडेंटिकल दे देगा. ओके सर, समझा. Yes. Who else has the doubt? Yes, Shera. सर आई हैव डाउट कि सर हमने 4C1 अगर वन डिस्टिंक्ट सॉरी जब हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कि 3 आइडेंटिकल उसको 4C1 क्यों ले रहे हैं हम लोग? 3C1 क्यों नहीं? 3C1 मतलब आप 3 ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट चूज कर रहे हो. आपके पास तो 4 ऑब्जेक्ट है ना. 3 क्यों लोगे आप? यू हैव 4 ऑब्जेक्ट. सर बट हमारे पास ऑप्शंस तो 2 है. 2C1 लिखा है हमने इससे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए. 2C1 में आपको ये 3 आइडेंटिकल मिल गए. आपके पास ऑलरेडी 3 लेटर आ गए. अभी टोटल 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं. तो ये एक लेटर सिलेक्ट आपको कितने लेटर में से करना है? दिस वन लेटर यू नीड टू सिलेक्ट आउट अच्छा, ऑफ. तो एक जब जाएगा तो एक बचा है. सर हाँ ठीक है सर. यस. हाँ सर, तो मेरे पास ऐसे डाउट नहीं है, पर अगर ऑलरेडी हमने एक बार कॉम्बिनेशन में S और E डाल दिया है ना, तो और एक बार हम 4C1 में कैसे डाल सकते हैं? किसमें? 2C1 में हमने S की E दोनों को डाल दिया है कॉम्बिनेशन में, तो वापस हम 4C1 में कैसे डाल सकते हैं? क्योंकि ये सिमिलर है ना बेटा. डिस्टिंक्ट वाले होते तो नहीं डालते. अच्छा, ओके. हाँ, थैंक यू सर.
चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट केस जो है बेटा, नेक्स्ट केस, प्लीज फोकस ऑन द नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या बनेगा? नेक्स्ट केस बनेगा टू आइडेंटिकल एंड टू डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट केस क्या बनेगा? टू आइडेंटिकल एंड टू डिस्टिंक्ट। टू आइडेंटिकल कौन कौन से हो सकते हैं ऑप्शन? पहला ऑप्शन ये हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है। इन तीन ऑप्शन में से मेरे को एक सिलेक्ट करना है। सो 3C1 इनटू दो डिस्टिंक्ट हैं, अगेन 1 2 3 4, सो 4C1 4C2 सॉरी 2 करना ना इसलिए 4C2। ये लगाऊं या मैं ये वाला लगाऊं? 3C1 इंटू 4C1 इंटू 3C1। ये टॉप वाला करेक्ट है कि बॉटम वाला? कौन सा वाला करेक्ट है? हाँ टॉप वाला, वेरी गुड, है ना? क्योंकि बॉटम वाले पे मैंने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को 2 बार एनसीआर लगाया है, ब्रेक कर करके लगाया है। तो टॉप वाला करेक्ट है, वेरी गुड, मेनी ऑफ यू गॉट इट। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट केस है अभी, इसका आंसर सबके आंसर नोट कर लेना। इसका ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग। नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल एंड टू आइडेंटिकल। ये वाला केस बहुत से बच्चे नहीं बना पाए। जो बच्चे 4 केस बोल रहे थे, आपको मेरे को पता है उनने ये वाला केस नहीं बनाया होगा। द स्टूडेंट्स हु आर सेइंग 4 केसेस, उनने ये वाला नहीं बनाया होगा। टू आइडेंटिकल एंड टू आइडेंटिकल, जरा ये वाला केस देखो। जैसा जैसे फॉर एग्जांपल SSEE, ये 2 आइडेंटिकल है, ये 2 आइडेंटिकल है। SSLL LLEE, है ना? तो ऐसा एक केस बनेगा नहीं कि नहीं बनेगा? पहला तो ये बताओ कि हाँ एक ऐसा केस बनेगा सर। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखो। पहले टू आइडेंटिकल बताओ मेरे को कौन कौन से बनेंगे। SS बनेंगे, EE बनेंगे और LL बनेंगे। ठीक है, तो मेरे को बताओ इसका आंसर मैं ये लिखूं या ये लिखूं? कौन सा वाला लिखूं, टॉप वाला कि बॉटम वाला? बॉटम, क्योंकि टॉप वाले में आप फिर से ब्रेक करके लगाओगे। यू विल अगेन अप्लाई एनसीआर ब्रेकिंग करके, सेम पर्पस के लिए, सेम ऑब्जेक्ट विल गो, है ना? डिस्टिंक्ट वाले, बॉटम वाला करेक्ट है ना? टॉप वाले में सेम ऑब्जेक्ट विल गो फॉर द सेम पर्पस ट्वाइस। अभी लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या बचा? 4 डिस्टिंक्ट, 1 डिस्टिंक्ट, 1 आइडेंटिकल, 3 डिस्टिंक्ट कुछ नहीं होता है, इट इज 4 डिस्टिंक्ट, जो कि सबसे इजी है। 4 डिस्टिंक्ट का आंसर क्या आएगा? 5C4। द आंसर फॉर 5C4, तो उसका आंसर 5 आएगा। अभी सभी केसेस के आंसर को आप ऐड करोगे, है ना? पहले केस का आंसर 2 है,
दूसरे केस का आंसर 8, तीसरे केस का आंसर 18 है, थर्ड केस का आंसर 3 है और लास्ट केस का आंसर 5 है। सबको ऐड करोगे तो आंसर 36 आता है। तो टेक्निक वन क्या है? सिलेक्शन टेक्निक किस किस चीज के लिए लगती है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगती है, आइडेंटिकल के लिए लगती है और मिक्स्ड के लिए। डिस्टिंक्ट के लिए तो आपको बता दिया, एनसीआर लगा लो। आइडेंटिकल के लिए चेक कर लो, 1 रहता है ना, डिपेंड करेगा। मिक्स्ड के लिए आपको क्या बनाना है? यू हैव टू टेक केसेस। दिस इज टेक्निक 1। अभी सीखते हैं टेक्निक 2। टेक्निक 2 इज वेरी इजी। नाम दे दो इसको, टेक्निक 2, दैट इज सेकंड टेक्निक। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज shuffling technique or arrangement technique. This technique is executed with the help of factorial. This technique sorry, is executed with the help of factorial. For example, मैं आपको बोलूं you have 4 different object A, B, C, D. आपको 4 different places पे arrange करना है। You need to arrange in 4 different places. In how many ways can you do that? Factorial 4. तो इस टेक्निक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऑब्जेक्ट कहां से आया, कैसे आया। This technique doesn't care where does and from how does the object came. This only technique merely shuffle them. तो जब भी आप फैक्टोरियल लगा रहे हो तो ये ध्यान रखना, वो आपके गिवन ऑब्जेक्ट को अरेंज कर देगा और उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। इट विल मियरली अरेंज, है ना। वो ऑब्जेक्ट कहां से आए, विच टेक्निक विल टेक केयर ऑफ दैट? टेक्निक 1, है ना। टेक्निक 1 बताएगी कि आपको कि वो ऑब्जेक्ट कैसे आए, सिलेक्शन। टेक्निक 2 विल ओनली अरेंज, सीधा अरेंज कर देगी। Yes. So technique 1 is executed with the help of NCR. Technique 2 is executed with the help of factorial, है ना। यहाँ पे भी 3 केसेस बनेंगे बेटा। पहला केस क्या था? डिस्टिंक्ट वाला। अब सपोज करो मैंने आपको बोल दिया इसका आंसर तो फैक्टोरियल 4 आया। अब मैंने आपको बोला चारों के चारों सेम आइडेंटिकल है, ऑल 4 आर आइडेंटिकल। तो बताओ मेरे को कितने अरेंजमेंट बनेंगे? वेरी गुड, 1, है ना। ए बस, उसके अलावा क्या अरेंजमेंट है बताओ मेरे को। जब तुम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा ए कौन सा है, तो आंसर क्या बनने वाला है? 1। डाउट बाद में बेटा, मेरे को पहले सिलेबस आगे बढ़ाने दो, ठीक है। मैंने बहुत डाउट ले लिए, लेट मी मूव अहेड। इसका आंसर कितने आने वाला है? 1। अभी मिक्स्ड केस लेते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दी मिक्स्ड केसेस, है ना। तो ये क्वेश्चन देखो जरा, लेट अस नोट दिस क्वेश्चन, देखते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सपोज करो ये वाला है, ए बी सी डी 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 ई एफ। इसका आंसर कितना आएगा? विल टेल मी, है ना। यू कैन गिव आंसर इन फैक्टोरियल, नो प्रॉब्लम। Number of ways of arranging these. All. Yes, Pratham, correct. Kavya Agrawal Andheri, correct.
Prisha, correct. From the other 9 places, Aditi. Arav, correct. Diptanshu, correct. Yashodi Shutpal, correct. Yes, Ami Jadhav, correct. प्रबुद्ध करेक्ट है, अक्षय मोहनी करेक्ट है, आर्यन दादर करेक्ट है, नहीं रॉन्ग है, नो भाविन रॉन्ग है, अर्पित रॉन्ग है, रशिल रॉन्ग है। रशिल आप उसको मल्टीप्लाई करके बता रहे हो, ठीक है करेक्ट। नो करेक्ट रॉन्ग है रफीना। हाँ अरेंजमेंट है ना, मैं कब मना कर रहा हूँ, बट सारे के सारे ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं क्या कि डिस्टिंक्ट हैं क्या? तो जो बच्चे सीधा डिस्टिंक्ट का वो लगा रहे हैं वो मिस्टेक कर रहे हैं। नो चलो, so many of the 20 to 30% student got it। जिनको नहीं आया है देखो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यस सुहानी करेक्ट है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैंने ये एग्जांपल लिया था। हाउ मेनी ऑफ यू मेरा लेक्चर अटेंड किया हुआ है, मैंने ये बताए थे ऑलरेडी, इनके परम्यूटेशन। Those students who have attended all my lectures, they must be knowing this। हाँ तो करेक्ट है ना हमें ज्यादा आपका। चलो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझो। क्या सॉल्यूशन होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, कितने वर्ड्स हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय जो रिपीट हो रहे हैं उनसे डिवाइड करना है। ए 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, डी 3 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 3। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, ये दे रहे हैं, मैंने बताया था ये मिस्टेक है, फैक्टोरियल 5। ये 2 + 3 कर रहा है, ये रॉन्ग है। हर लेटर के लिए इंडिविजुअल फैक्टोरियल लगाओ। ए के लिए 2, डी के लिए 3, 2 + 3 मत करो 5। बहुत से बच्चे ये आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब कौन बताएगा मेरे को, ऋषा और एनीबॉडी, आपने जो आंसर दिया वो तो करेक्ट था आपका, कि ये कैसे आया? यस रेज योर हैंड। यस प्रिशा। Sir, because we are not taking the ones which are getting repeated. That's why. Can you elaborate more how, some example? Like for example, A should not be repeated, right? So A is coming 2 times. So if we take the total number of letters, and then we divide them by the letters which are repeating, the factorial of the letters which are which are like repeating. So we are not taking them as repeating. We are just taking them once. That's why. Okay. Okay, Arrow.
यस आरव। सर एक एग्जांपल है मॉम, उसमें सर अगर हम तीनों को डिस्टेंस मानते हैं M1 O और M2 सर, तो इसमें 3 फैक्टोरियल वेज हो सकते हैं सर, लेकिन अगर M1 और M2 को नहीं माने डिस्टिंक्ट सर, तो M1 O M2 और M2 O M1 एक ही होगा सर। तो वो ऐसे जो सारे कॉम्बिनेशन होंगे उससे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। हाँ सर, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ये लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वही है। ठीक है, एनी अदर वे अदर देन दिस, ये जो एक्सप्लेन किया आ रहा हूँ करेक्ट है। एनी अदर वे अदर देन दिस, किससे कोई डिफरेंट वे है मेरे पास सर, तो ही रेज हैंड करो। मेरे हैंड, इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी अदर वे देन दिस देन रेज योर हैंड, आई हैव अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। चलो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, यस आशी। सॉरी, बोलो। आशी फ्रितोला फ्रॉम अंधेरी, स्पीक। चलो अभी समझो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, प्लीज अंडरस्टैंड। डाउट So बाद में। sorry, there was a network issue. Can I say? बोलो। So you can make cases like you did in the way of selection. Okay. How? कितने केसेस बनेंगे और? चलो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज फोकस। ठीक है, प्लीज फोकस। नाउ आई एम मेकिंग अंडरस्टैंड। देखो, वी हैव द 9 लेटर है ना, तो 1 आई विल मेकिंग 9 डैशेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 प्लेसेस पे मेरे को इन 9 लेटर्स को अरेंज करना है ना। डाउट सारे बाद में मैं बोल रहा हूँ ना, रेज, डू नॉट रेज योर हैंड। अंडरस्टूड करो, ये 9 प्लेसेस हैं, इन 9 प्लेसेस पे मेरे को इन 9 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। तो सबसे पहले ये बताओ, प्रॉब्लम किस किस को है? प्रॉब्लम डी को है, 3 बार आया है, और प्रॉब्लम ए को है, 2 बार आया है। बाकी किसी को तो प्रॉब्लम है नहीं, करेक्ट? तो इन डी को फिल करने के लिए ये बताओ मेरे को कितनी प्लेसेस लगेंगी। हाउ मेनी प्लेसेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस डी? 3, क्योंकि 3 डी हैं। यहां तक फॉलो किया? 3 डी है मेरे पास, 3 प्लेसेस लगेंगी। तो टोटल 9 प्लेसेस में से मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूं, 9C3। समझ में आया? ठीक है, अब सपोज करो एक डी यहाँ पे आ गया, एक डी यहाँ पे आ गया, और एक डी यहाँ पे आ गया। अभी इन डी को मैं आपस में अरेंज करना चाहता हूं। कितने तरीके से कर सकता हूं? इन हाउ मेनी वेज कैन आई अरेंज दीज डी? नहीं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं क्या? हमें 1 आएगा आंसर। फैक्टोरियल 3 जो बोल रहा है वो तीनों डी को डिस्टिंक्ट ले रहा है। क्या आंसर आएगा? 1। वेरी गुड, है ना? हाँ, सो द आंसर फॉर दिस इज 1। चलो डी का केस ओवर। अब बताओ, अब मैं ए लेता हूं। ये ए को कितनी प्लेसेस लगेंगी? 2। कितनी प्लेसेस बची? 6। तो 6 में से मैं 2 सिलेक्ट कर लेता हूं, 6 2। सपोज करो ए यहां पे आ गया, ए यहां पे आ गया। अंडरस्टूड? अब इन दो को मैं कितने वे में अरेंज कर सकता हूं? 1। सो इनटू 1 इनटू, अभी बचे कितने लेटर? 4। कितनी प्लेसेस बची? 4।
सो 4C4 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि चारों के चारों डिस्टिंक्ट है। 4 प्लेसेस सिलेक्ट कर दी और उन 4 प्लेसेस पे 4 से अरेंज कर दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख लो। आप लोग जो आंसर दे रहे थे ना, फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये वही आंसर बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली एनपीआर अप्लाई करोगे तो फेल हो जाएगा। एनपीआर जो है इट्स अ गुड टेक्निक, नो डाउट, बट टेक्निक 1 और टेक्निक 2 दोनों का यूज करके आपको एनपीआर मिल ही जाता है। Execute technique 1, get NCR. Execute technique 2, get factorial. Multiply both technique 1 and technique 2, you'll get the NPR. That is the definition of NPR. है ना? But आप यहाँ पे direct NPR नहीं लगा पाओगे. NPR will fail in this question. But technique 1 and technique 2 will help you out. Technique 1, apply selection. Technique 2, shuffle them. Third step, multiply them, you'll get the answer. Any now अभी किसी बच्चे को डाउट है, raise your hand. Yes. Yes, Ishan. Very well. सर है ना ऑडिबल? Yes. सर मुझे इसमें डाउट है कि सर 4C4 और इंटू 4 फैक्टोरियल कैसे आया? कितने प्लेसेस थे बेटा आपके पास? 9 तो बेटा कंज्यूम हो गए ना, यहाँ पे 3 कंज्यूम हो चुके हैं, यहाँ पे 2 कंज्यूम हो चुके हैं। सर मतलब अभी 5 प्लेसेस निकल गए। हाँ, कितने बचे? 4 तो ये 4 आ गया। कितने चाहिए? और 4 चाहिए। तो 4C4। ओके सर। सर आपने कहा था कि डिस्टिंक्ट है, तो फिर वो नहीं समझा सर। कौन से 4 लेटर बचे? कौन कौन से आपके पास हैं? बी है, सी है, डी है। डी और ए तो हो गए ना, बी है, सी है, ई है, एफ है। बी हो चुका है, बी, सी और ई, एफ है सिर्फ। ओके सर। 1 2 3 4। ओके सर, गॉट इट सर। यस अर्पित। Hello, sir. हाँ। Sir, can you explain again because you were not audible? ओके, I'll explain. कौन सा, ये वाला पार्ट? हाँ सर, वो 9C3 into 1। देखो, सबसे पहले प्रॉब्लम जिनको है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको है? डी लेटर को है। तो ऐसा करो ना, डी लेटर को पहले हम सबसे पहले उसी को बिठालते हैं। तो डी लेटर को बिठाने के लिए, अरेंज करने के लिए मेरे को 3 प्लेसेस चाहिए। मेरे पास टोटल 9 प्लेसेस हैं, 9 डैशेस हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं? 9 है ना लेटर, तो 9 डैशेस बना दिए मैंने। 9 में से मेरे को 3 प्लेसेस सिलेक्ट करनी है, तो 9C3। समझ में आया? अब लेट्स सपोज इन प्लेस पे मैंने डी को बिठा दिया, ये डी बैठ गया, ये डी बैठ गया, ये डी बैठ गया। अब इन डी को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं इन प्लेसेस पे? वन वे। सो सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। ठीक है, फिर सेकंड, अभी 3 प्लेसेस कंज्यूम हो गई, कितनी बची? 6। ए को लगने वाली है 2, तो 6C2 इंटू 1, क्योंकि ए एक ही तरीके से अरेंज हो सकता है ना। अभी 3 + 2 5 कंज्यूम हो गई, बची 4। सो 4C4 बचे डिस्टिंक्ट लेटर 4, सो फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व कर लो, वही आंसर आएगा जो आपको यहाँ आ रहा था। ओके सर, थैंक यू। यस स्वप्निल। सर मुझे एक्चुअली डाउट है कि हम
बोले लाइक 9C3 into 1 फिर 6C2 into 1 फिर 4C4 into 4 फैक्टोरियल से हम लोग into 1 और into 4 फैक्टोरियल क्यों किया? क्योंकि बेटा आप अरेंजमेंट भी कर रहे हो, ये क्वेश्चन में आप अरेंजमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये तो सिर्फ सिलेक्शन देता है। क्या जगह खाली लेके बैठ जाओगे क्या? 6 प्लेस हैं आपके पास, बस जगह का क्या करोगे? व्हाट विल यू डू ऑफ द प्लेसेस? उन्हें भी फिल करूंगा। हाँ, तो फिल किस तरीके से कर सकते हो? 1, क्योंकि आप डी 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 डालोगे, हर केस में डी 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 आने वाला, आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा डी कौन सा है। तो सर मैं लास्ट केस में 4C4 into 4 फैक्टोरियल क्यों किया? क्यों? आपके पास 4 डिस्टिंक्ट लेटर है ना अभी, बी सी डी बी सी ई एफ, और 4 प्लेसेस हैं, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? ओके सर। और लास्ट डाउट था कि सर ऐसा कोई इसमें केस होने वाला, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर मतलब डी के रिस्पेक्ट में इतने लेटर्स है और ए के रिस्पेक्ट में इतने लेटर्स, ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है? नहीं, इसमें तो नहीं होगा ऐसा कुछ। यस सर। सर तो मुझे ये नहीं समझा कि आप बोले कि यू टुक 2 केसेस, आइदर फर्स्ट की वो डी और ए दे आर एट द सेम प्लेसेस, उसमें वो आपने लिया, और सेकंड केस आपने लिया कि डी और ए दोनों डिस्टिंक्ट है। पर अगर आपने डिस्टिंक्ट लिया तो डिस्टिंक्ट तो कोई भी जगह पर हो सकता है, लाइक आपने ए को ए के बीच में डी डाला है तो ए तो दो एंड कॉर्नर्स पे भी तो हो सकते हैं ना। हाँ, तो ये जो मैंने 6C2 लिया है, ये उसका टेक केयर करेगा ना। ये 6-2 किस लिए लिया है? अच्छा हाँ बराबर, 6C2 मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 प्लेसेस आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये प्लेसेस हाँ। के लिए है। वो प्लेसेस यहाँ पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं। Yes, last doubt, Prityush, then I'll give another question. Yes, sir. Can we do directly that there are A is coming twice and D is coming thrice? So, sir, 9 हाँ, कर factorial. सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। Okay, sir. चलो, अभी let us take the another question. ये क्वेश्चन ध्यान से करना, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम लेटर है। क्या है वर्ड? स्लीपलेसनेस। sleeplessness. This is the word. Question is, how many 4-letter words? How many 4-letter word can be formed from the word sleeplessness या from the above? ये जो word लिखा ना मैंने, from the above word, जो sleepless लिखा है, उससे आपको 4 लेटर के कितने अरेंजमेंट वाले बन सकते हैं वो बताना है। from the above word करो ना। टाइम हो गया बेटा, so let's take this as a assignment, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 9 हो चुके हैं। आई डोंट वांट यू नहीं कर। क्या सारे के सारे लेटर सेम है? सीधा आंसर नहीं आएगा ऐसे, ये मिस्टेक मत करो। जो बच्चे फैक्टोरियल 13 वैसा करके दे रहे हैं, दे आर अगेन मेकिंग द सेम मिस्टेक।
यस ठीक है, तो मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ. दिस इज द होमवर्क. जो बच्चे डायरेक्टली सीधा टेक्निक अपना रहे सोचना रॉन्ग है. आज के लेक्चर को रिवाइज करना. ठीक है. So I'm ending the lecture now. Thanks guys for your active participation.